So, hello everyone. Today we are going to start Lee-Chatterjee's principle, which holds a tremendous importance in our JEE Mains and Advanced. Also, we get a single question every year in NEETs. So, let's discuss what happened in Lee-Chatterjee principle. So, when a reaction is in equilibrium, and as we know, all equilibrium reactions are reversible, or when a reaction is in a reversible condition, and as always we know it is in equilibrium, then what will happen? A plus 2B is converted into 3C plus D or 4D, whatever we can say. So this is in equilibrium. That means the rate of forward reaction is always equal to the rate of backward reaction at the condition for the equilibrium. So what happens now? Lee-Chatterjee principle explains how different factors, different parameters such as pressure, temperature, volume will affect the change in equilibrium. So what will happen when we change pressure, when we change concentration, when we change volume, when we change temperature? So it defines that equilibrium always will shift in a particular direction where the effect of change is nullified. Like whatever we have changed, like if we have changed pressure, temperature or volume, then whatever change we have done, the change is nullified or undone. So we have to undo the change on equilibrium. So let's understand, like this is a really complex topic, so let us understand very precisely what we have to do in different parameter changes. So first of all, let's start from change in concentration. So what happens when we change the concentration of a reactant or product in a particular reaction? So change in concentration. So concentration we denote as a square bracket, okay? And what happens? Let us discuss this very famous reaction. Yes, Haber process. So अपन को हाबर प्रोसेस में क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है, और वी नो वी जनरेट सम अमाउंट ऑफ हीट 22.1 किलो कैलोरी. ओके, सो हियर in this reaction we have 1 mole of N2 reacts with 3 moles of hydrogen to give us 2 moles of ammonia. So what happens that when I change the concentration of nitrogen or when I increase the concentration of nitrogen, अपन को क्या मिलेगा ना? अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है तो मोर रिएक्टेंट एंड लेस प्रोडक्ट, सो हमें ज्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली अगर सो दिस इज द इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अमोनिया. सो सिमिलरली अगर वी वांट टू इंक्रीज द अमोनिया फॉर्मेशन बाय doing something with the product side, so we have to remove product. So to again maintain the equilibrium, more ammonia will form because we will have more reactant. अपन के पास ज्यादा reactant होगा और less product होगा. तो again equilibrium को undo करने के लिए या फिर वो change को undo करने के लिए Lee-Chatterjee principle के according reaction forward direction में जाएगा. So forward direction is also called as right shift. Similarly, backward direction is also called as left shift. So concentration was very simple. Like when we change concentration of the reactant or when we increase the concentration of reactant, the reaction will proceed in forward direction. To undo the change of the increase in the concentration of reactant, it will form more product. Similarly, अगर हम product का concentration decrease कर देते हैं तो reaction forward direction में जाएगा, और अगर हम reactant का concentration decrease करते हैं तो reaction backward में जाएगा. Okay, so vice versa, concentration is very simple. So यहाँ पर से हम ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिर भी कभी कभी नीट में ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. देन लेट्स डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर. सो हियर वी विल हैव टू केसेस, इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन प्रेशर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV is equal to nRT. तो प्रेशर विल बी इक्वल टू N by V RT, which is equal to concentration into RT. So यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration.
So whenever we will change pressure, we have to change for the whole system. So whenever we will change, increase or decrease pressure, we have to change for whole system. We cannot individually change the pressure of individual reactants or individual products. So again, let us consider a very simple reaction. So at pressure, when pressure increases, concentration will increase. So what will happen? Let's discuss for this reaction. PCl5 gas is converted into PCl3 plus Cl2. So यहाँ पर अपन लोगों को दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर है 2 मोल, लाइक PCl3 PCl2. पहले अपन को स्टोइकियोमेट्री ठीक करना है, बैलेंसिंग करने के बाद अपन डिसाइड करेंगे. तो यहाँ पर 1 मोल प्रोडक्ट है और 2 मोल रिएक्टेंट है, और आपको क्या दिख रहा है? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है हर तरफ. तो किस तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा? हाँ, आप सही हो. तो प्रोडक्ट साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा. तो क्या करेगा इक्विलिब्रियम? टू undo the change of equilibrium, undo the change of the effect, the equilibrium will shift towards left. तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? तो यहाँ पर हमें प्रेशर चेंज का इफेक्ट पता चलता है. और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें क्या मिला ना, डेल्टा एन जी. सो डेल्टा एन जी क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो हमें नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, माइनस करना है. और यहाँ पर डेल्टा एन क्या आ रहा है? 2 minus 1 फॉर दिस रिएक्शन. सो इट इज कमिंग एज +1. और यहाँ पर अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ, इंक्रीजिंग प्रेशर केस में आपको पता है प्रेशर इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, और कॉन्सेंट्रेशन हर तरफ इक्वली इंक्रीज होगा. सो यहाँ पर जिस तरफ ज्यादा मोल होंगे उसी तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज होगा, और जिस तरफ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो रिएक्शन अपोज डायरेक्शन में फ्लो करेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर इक्विलिब्रियम. सो इंक्रीजिंग प्रेशर केस में डेल्टा एन पॉजिटिव का रिजल्ट हमें मिला. व्हाट वाज द रिजल्ट? इफ डेल्टा एन इज पॉजिटिव इन इंक्रीजिंग प्रेशर केस, if delta n is positive, then it will go in backward direction. So यहाँ पर एक सिंपल रूल लिख सकते हैं. if pressure increases, ये रूल लिख सकते हैं, if pressure increases, equilibrium will shift in a direction having lesser number of molecules. In a direction having lesser number of molecules. So अपन को क्या अभी पता चला ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा in a direction having lesser number of molecules. Let's verify that for a reaction where delta n is negative. So this is a very famous example, Haber's process, where we use the industrial formation of ammonia. Here every component is in gaseous state, and if the concentration increases, the concentration will increase everywhere uniformly. And here we have 2 moles of product and 4 moles of reactant. So what will happen? We will have more reactants and less product if we increase the pressure, and concentration will increase simultaneously. So we have more reactant and less product. So in order to maintain the equilibrium again, we will form more ammonia. यहाँ पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अगर आपको राइट शिफ्ट चाहिए या फिर मोर अमोनिया चाहिए, या तो आप इंक्रीज कर सकते हो इन रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को. तो रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए आप प्रेशर इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. सो दोनों इफेक्ट में आपको थोड़ा थोड़ा रिलेशन नजर आ रहा होगा. और आपके पास और क्या रास्ता है? आप इस NH3 को रिमूव भी करवा सकते हो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में यहाँ पर काम करना चाहते हो. तो यहाँ पर हमें और एक कंक्लूजन मिला कि अगर डेल्टा एन इज नेगेटिव इन हाई प्रेशर सिचुएशन और प्रेशर इंक्रीज सिचुएशन, द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. और अभी अपन के लास्ट केस में आते हैं इंक्रीजिंग प्रेशर में. तो अगर डेल्टा एन 0 हो गया, मींस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. सो H2 plus I2 is converted into 2HI. What will happen here? H2 is increasing, I2 concentration is increasing with increasing pressure, and here HI also increasing. तो कुछ को डेल्टा एन कैलकुलेट करना है. डेल्टा एन कैलकुलेट करने से यहाँ पर कितना निकलेगा? 2 minus 2 0. अगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो रिएक्टेंट साइड में भी 2 यूनिट इंक्रीज और प्रोडक्ट साइड में भी 2 यूनिट इंक्रीज. तो बोथ साइड में कॉन्सेंट्रेशन का सिमिलर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी मेंटेन. सो pressure change in such type of reaction where delta n is 0 or delta Ng is 0, then pressure change, volume change, concentration change will have no effect. But if you increase the concentration of reactants,
then what happen? It will go in the forward direction. If you decrease the concentration of product, it will go in forward direction. But आपका प्रेशर चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. चलिए आगे डिस्कस करते हैं. So इंक्रीजिंग प्रेशर केस में हमको समझ मिला कि डेल्टा एन जीरो में नो इफेक्ट एंड देन डेल्टा एन पॉजिटिव में हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा, डेल्टा एन नेगेटिव में हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना होगा. तो अभी डिक्रीजिंग प्रेशर केस में देखते हैं प्रेशर डिक्रीजेस. So from Heidelberg's equation we got pressure is directly proportional to concentration. So pressure decrease करने के बाद concentration भी decrease करेगा. तो similar reaction हम देख लेते हैं. N2O4 is converted into 2NO2. So what will happen in this reaction? So यहाँ पर both the components are gaseous. So first of all यहाँ पर क्या होगा ना, अगर प्रेशर आप डिक्रीज करवाते हो सिस्टम का तो कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज करेगा. और which side the concentration will decrease more? Concentration will decrease more in the product side because we have 2 moles of product and 1 mole of reactant. So आपके पास after applying the pressure आपके पास किस साइड concentration less है ना, product side में concentration less है. तो to make more product we have to move in the forward direction. Okay. So to make more product we have to move in the forward direction. All right, sit. यहाँ पर डेल्टा एन पॉजिटिव के केस में लो प्रेशर में हमें मिल रहा है, लो प्रेशर में और डिक्रीजिंग प्रेशर में डेल्टा एन पॉजिटिव के केस में हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है. और अभी अपन लोग देखते हैं डेल्टा एन नेगेटिव केस में क्या हो रहा है इधर. So these conclusions are important. After that we will do a combined study of all reactions. So N2 plus 3H2 यहाँ पर भी अपन दे रहे हैं 2NH3 करके निकल रहा है प्रोडक्ट और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया निकल रहा है. और आपको पता है एवरीवन इज इन गैसियस स्टेट. तो अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो अपना कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा हर डायरेक्शन पे, प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड पे. तो कहां पर ज्यादा डिक्रीज होगा? सो विल डिक्रीज 4 मोल इन द रिएक्टेंट साइड एंड ओनली 2 times or 2 units in the product side. So we'll have more product and less reactant. So to undo the change we have to move to the backward direction. So to undo the change we have to move to the backward direction. So delta n will be negative. Then we'll have backward direction while applying low pressure or while decreasing pressure. So what will happen? Can we calculate delta Ng here? It is -2, right? +2 -4. So it is -2. So यहाँ पर अपन डेल्टा Ng हर जगह लिख लेते हैं बिकॉज बार बार मैं बोल रहा हूँ कि हमें गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देखना है, गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट देखना है. सॉलिड और लिक्विड हुआ तो अपन इग्नोर कर सकते हैं उन लोगों को, या फिर प्रेशर टर्म्स में, वॉल्यूम टर्म्स में हम कंसीडर नहीं करेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इफेक्ट. होपफुली आप लोगों को सारे कंक्लूजन याद हैं. होपफुली यू रिमेंबर ऑल द कंक्लूजन हियर. सो टेम्परेचर को समझने के लिए अपन को पहले रिएक्शन टाइप समझना पड़ेगा. तो अपन मेनली डील करते हैं 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हीट और टेम्परेचर. इन आवर केमिस्ट्री वी हैव एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? सो हियर ए रिएक्टेंट and both the reactant combine to give a product and release some heat. So यहाँ पर heat release होता है, whereas एंडो में आपको दोनों रिएक्टेंट को कुछ अमाउंट का हीट देना पड़ेगा और तब जाके यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. तो एंडो और एक्सो के बीच यही डिफरेंस है. और एंडो में हमें एंथैल्पी मगर हीट रिलीज हो रहा है. तो डेल्टा एच जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट और टू प्रिपेयर 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट विल हैपन ना, यहाँ पर डेल्टा एन का वैल्यू, डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव रहेगा और यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन. सो अपन को पहले पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन एक्सो है या एंडो है. अपन को पहले पता होना चाहिए वो रिएक्शन एक्सो है या फिर एंडो है, वो हीट चाहता है या फिर हीट नहीं चाहता है. सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो पहले इंक्रीजिंग टेम्परेचर केस में हम देखेंगे सिमिलर रिएक्शन N2 plus 3H2 इज कन्वर्टेड इनटू 2NH3 और यहाँ पर कुछ अमाउंट का हीट हमें रिलीज हो रहा है और ये डेल्टा H जो है नेगेटिव निकलेगा या फिर एक्सोथर्मिक निकलेगा बिकॉज आपको अभी बताया कि हीट अगर रिलीज हुआ देन दैट विल बी ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो व्हाटएवर may happen if you have increased the temperature here, then for a exothermic reaction
टेम्परेचर, आप कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे? कुछ अमाउंट का हीट देके या फिर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स देके। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन में हमारा हीट का अमाउंट मोर हो जाएगा। और ये अगर देखिए यहाँ पर ये फॉरवर्ड रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो मैं ये बैकवर्ड रिएक्शन देखूं तो ये एंडोथर्मिक बन रहा है। अगर आप एक्सेस हीट दे रहे हो, वो एक्सेस हीट कौन कंज्यूम करेगा? सो ये रिएक्ट प्रोडक्ट अमोनिया वो एक्सेस हीट कंज्यूम करेगा और वापस रिवर्ट बैक करेगा प्रोडक्ट साइड में। सो टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू हीट एंड it will promote endothermic reaction. So we discussed now only that if a reaction is exothermic in forward direction, it will be endo in backward direction. So यहाँ पर endothermic reaction मतलब backward direction और राइट शिफ्ट। सो ज्यादा केसेस डिस्कस करके कंफ्यूजन बढ़ाने से अच्छा है कि अपन एक ही केस पकड़े और उसी से ही अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करे। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करे और एंडोथर्मिक रिएक्शन को सपोर्ट करना है तो यहाँ पर आपको पता है अगर फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सो, देन दिस बैकवर्ड रिएक्शन वेयर अमोनिया इज गेटिंग सम अमाउंट ऑफ हीट एंड कन्वर्टिंग इनटू द रेस्पेक्टिव रिएक्टेंट इज एंडो। सो यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन सपोर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगा। सिमिलरली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं। So when we are forming NO2 from N2 and O2, so we need some amount of heat, then only we will get some NO2. So every component will be in gaseous state, and what will happen? We are giving some amount of heat. So यहाँ पर in the increasing temperature case, so this reaction is endothermic. और ये जो साइन है अपना हमेशा के लिए रिवर्सिबल होगा इस चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। और ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो कुछ अमाउंट का हीट अब्जॉर्ब करके अपन को प्रोडक्ट दे रहा है तो रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं अपन यहाँ पर हाफ मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पर टेम्परेचर केस में बैलेंसिंग की कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ सिस्टम में हीट इंक्रीज होगा, अगर हीट इंक्रीज हुआ तो व्हाट विल हैपन? इट विल सपोर्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यहाँ पर अपना फॉरवर्ड रिएक्शन ही एंडो है बिकॉज एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट की जरूरत होती है या फिर एनर्जी की जरूरत होती है। तो रिएक्शन हियर विल फॉरवर्ड शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ओके, देन लेट्स डिस्कस अबाउट टेम्परेचर डिक्रीजिंग केस। वही सेम। सो अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है मीन्स we are taking out energy from the system or we are decreasing the temperature by cooling it. So वहां पर क्या होगा ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होगा, एंडोथर्मिक where heat is required. So here heat or energy is required and we are not giving it the heat or desired amount of energy. So what will happen? एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा डिक्रीजिंग टेम्परेचर के केस में। वहां पर क्या फेवरेबल होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आप हीट या फिर एनर्जी रिमूव कर रहे हो किसी रिएक्शन से या फिर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो किसी भी मेथड से तो वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होगा। व्हाई ना? बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमें ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए। A plus B is converted into product C and releasing some amount of heat. सो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है बिकॉज ये हीट रिलीज कर रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करने पे हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रमोशन मिलेगा बिकॉज हीट रिलीज हो रहा है। हम भी सिस्टम का टोटल एनर्जी डिक्रीज करवा रहे हैं तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन मिलेगा एक्सो का। फॉरवर्ड डायरेक्शन वही अमोनिया वाला एग्जांपल पकड़ते हैं जो कि एक्सोथर्मिक था। तो हार्मोस प्रोसेस में हमें ज्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन करने के लिए अपन को चाहिए लो टेम्परेचर। सो बाद में एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट में पता चला कि हम ज्यादा लो टेम्परेचर भी नहीं कर सकते रिचर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। सो वो सब हम मतलब रिएक्शन को एक ही पैरामीटर को अफेक्ट नहीं करता, बहुत सारे पैरामीटर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एच जो है नेगेटिव है विच विल कम अराउंड 22.1 किलो कैलोरी। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट विल हैपन ना, if we decrease the temperature the reaction will proceed in forward direction because forward direction is exothermic. And if we increase temperature, previously we have discussed, the reaction will go backward or simply we can say left shift. Okay, so hopefully pressure temperature cases are very clear and these are the most important cases which we will discuss in different type of questions and examiner also expects us to remember all this situation where we can
predict the change in equilibrium, or we can undo the change in equilibrium by Lee-Chatelier's principle. So like हर किसी को स्टेबल रहना पसंद है. आपने सीसॉ खेला होगा, यहाँ पर आपने 90 kg का वेट डाला है और यहाँ पर 90 kg का वेट डाला है, तो ये जो सीसॉ है इक्विलिब्रियम पे है. अगर आप यहाँ पर 10 kg एक्स्ट्रा डाल देते हो तो क्या होगा, ये सीसॉ एक तरफ झुकने लगेगा, इस तरफ झुकने लगेगा. तो फिर आपको क्या करना है ना, ये सीसॉ ऐसा कुछ सिस्टम अपने अंदर ही डेवलप कर रहा है. ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या कर रही है, इक्विलिब्रियम कुछ ऐसा ही सिस्टम अपने अंदर डेवलप कर रहा है जैसे कि वो ये इस 10 किलो से 5 किलो उस तरफ डाल दें, जो कि हमारे दोनों तरफ अमाउंट ऑफ वेट सिमिलर हो जाए या फिर सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए. सो लेट्स अंडरस्टैंड आवर लास्ट टू केसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फिनिश द कैटलिस्ट केस, देन वी विल गो टू इनर्ट गैस केस. सो as all of us know what is a catalyst. Catalyst will not interfere in chemical reaction. It may either increase the speed of the reaction by decreasing the activation energy, or it may decrease the speed of reaction if it is a catalytic poison by increasing the activation energy. So one line you should remember in Lee-Chatelier's principle, that catalyst has no effect in equilibrium. So whatever catalyst you may use, it will not affect our equilibrium because it is not directly participating in our reaction, and it will not appear in our Kc, Kp expressions. So whatever catalyst may you use, so reaction will have no effect or change in equilibrium while changing the catalyst or applying any catalyst to a non-catalytic reaction. So the last case, and this is very interesting. So rather writing inert gases, which all the books and all the materials write, we'll write inert materials, because it not only focuses with inert gases, it focuses with all of those material जो हमारे रिएक्शन को हार्म नहीं पहुंचाते, all of those materials which will not affect the given reaction or the desired product formation. So यहाँ पर भी अपन को दो केस मिल रहा है. फर्स्ट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो हमें आइडियल गैस के अकॉर्डिंगली पता है और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली पता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ओके, सो अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. लेकिन अपन को पता है कि अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन भी डिक्रीज करेगा. ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. अगर आप वॉल्यूम को ही कांस्टेंट कर देते हो तो दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन में कोई इंक्रीज नहीं आएगा. व्हाट एवर इनर्ट गैस में यू आर मे बी सम इनर्ट मटेरियल्स, सो यहाँ पर क्या होगा, नॉट कांस्टेंट वॉल्यूम केस में नो इफेक्ट. ओके, बिकॉज वहां पर कोई कॉन्सेंट्रेशन का चेंज नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा दोनों तरफ, और हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम केस में नो इफेक्ट रहेगा इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम. So let's discuss about constant pressure. So when constant pressure किया जा रहा है सिस्टम में, और आप anyway वॉल्यूम को इंक्रीज करवा रहे हो, लाइक आप इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हो, इनर्ट मटेरियल एडेड. सो व्हाट विल हैपन, कोई भी आप इनर्ट गैस या फिर कोई भी इनर्ट मटेरियल ऐड कर रहे हो तो सिस्टम में कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज आएगा, और इफ यू आर एडिंग समथिंग देन द सिस्टम विल एक्सपैंड रादर देन कॉन्ट्रैक्टिंग. तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा व्हेनेवर यू ऐड समथिंग. सो वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा. सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू नो दिस, एंड वी आल्सो डिस्कस नाउ दैट इट इज कमिंग फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन. सो कोई भी इनर्ट गैस ऐड किया, देखते हैं अपना एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं PCl5 का. तो यहाँ पर क्या होगा, PCl5 कन्वर्ट हो जाएगा PCl3 और Cl2 में, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा. और आपको पता है हम इंडिविजुअली कोई भी कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज या इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते. अगर हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और हर जगह कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा. और आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर 2 मोल डिक्रीज हो रहा है, इन द प्रोडक्ट साइड 2 टाइम्स डिक्रीज, और यहाँ पर ओनली 1 मोल डिक्रीज. और यहाँ पर डेल्टा एम का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा.
+1। सो यहाँ पर अगर मोर प्रोडक्ट एंड लेस रिएक्टेंट बन रहा है तो हमें यहाँ पर फॉरवर्ड शिफ्ट लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, बिकॉज आफ्टर इंक्रीजिंग वॉल्यूम concentration decreases and यहाँ पर less product is remaining and more reactant is remaining because there is more decrease in the product side, so forward shift is favored, forward shift or right shift to undo the change of effect of volume, okay, to undo the change of effect of inert gas or volume. Similarly, hopefully ये कंक्लूजन अपन लोगों को याद रहा। तो और एक डेल्टा नेगेटिव वाला केस डिस्कस कर लें या डायरेक्ट समराइज करने की कोशिश करें, तो देखते हैं, कर लेते हैं। क्यों आप बोलोगे सर मैंने नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए, what will happen if volume is increasing by addition of any inert material, then concentration will decrease throughout. तो यहाँ पर हर साइड में concentration डिक्रीज कर रहा है, और आपको पता है रिएक्टेंट साइड में ज्यादा मोल्स हैं, तो 4 मोल्स रिएक्टेंट डिक्रीज करेंगे 4 यूनिट से, और यहाँ पर 2 मोल कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा 2 यूनिट से। तो प्रोडक्ट अमाउंट हो गया मोर, रिएक्टेंट अमाउंट हो गया लेस। तो टू अनडू द चेंज ऑफ दिस इफेक्ट एंड टू अटेन इक्विलिब्रियम अगेन वी नीड टू फॉर्म मोर रिएक्टेंट्स। सो मोर रिएक्टेंट बनाना है तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन या फिर लेफ्ट शिफ्ट लेना होगा। ये इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन और लेफ्ट शिफ्ट। ओके, गॉट इट? So these are all the 5 cases we have discussed. First of all, we discussed about concentration, then about pressure, then about temperature change. Here we have discussed addition of inert material, which is also signifies the increase of volume. Again, we can predict the same, like vice versa for decrease of volume. Okay, and we also discussed the case of catalyst where there is no effect. So एक आखिरी चीज रह जाता है इधर, वही सेम, when delta n is 0, so H2 plus I2 is converted into 2HI. तो अपन का इनर्ट मटेरियल एडिशन से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा। सो कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज थ्रू आउट। तो यहाँ पर 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो इधर भी अपना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड विल आल्सो डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स। सो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और वॉल्यूम चेंज, प्रेशर चेंज विल नॉट हैव एनी इफेक्ट when delta Ng is 0. So all of the components are in gas state, and volume will have no change when delta Ng is 0. So अभी हम देखने वाले हैं what happens when we take a particular reaction. So एक particular reaction अपन लेते हैं, पहले सारे जो इफेक्ट को एक तरफ समराइज करते हैं, देखते हैं अपन को क्या याद है क्या नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हर किसी को याद होगा समरी में, समरी सो अगर इफ यू आर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स देन इट विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और राइट शिफ्ट। इफ यू आर डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इट विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, similar for if you are decreasing concentration of product or removing product, it will proceed in forward, and if you are increasing the amount of product then it will go backward in order to undo the change of concentration or change in equilibrium direction. So again, coming on to pressure, here we have 2 cases. So if we are increasing pressure, concentration will increase, then what will happen when delta n is positive? तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज के लिए अपन ने एक रूल बताया था, सो जिस तरफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी तरफ रिएक्शन शिफ्ट करेगा। सो व्हेन डेल्टा n इज पॉजिटिव द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड। व्हाई? बिकॉज वी हैव मोर इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन इन द प्रोडक्ट साइड व्हेन डेल्टा n इज पॉजिटिव, या फिर जिस तरफ ज्यादा मोल होंगे, एंड व्हेन डेल्टा n इज नेगेटिव इट विल गो फॉरवर्ड। सो वाइस वर्सा फॉर डिक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। देन टेम्परेचर के केस जाते हैं हम, और डेल्टा एन 0 के केस में क्या होगा? डेल्टा एन जी अगर 0 हो गया तो इफ डेल्टा एन जी इज 0 देन द प्रेशर चेंज विल हैव नो इफेक्ट। तो आपको अभी टेम्परेचर चेंज के बारे में समझाते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर में फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा बिकॉज उसको हीट या फिर एनर्जी की जरूरत है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो बैकवर्ड डायरेक्शन एक जो होगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन
लो टेम्परेचर में फेवर करता है, बिकॉज वो हीट रिलीज करना चाहता है अपने सिस्टम से। अगर आप उसको एक्सेस हीट दे रहे हो तो वहां पर फिर भी एंडो फेवरेबल हो जाएगा और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आपको एक एक्सो को फॉरवर्ड में लेना है, एक्सो को फॉरवर्ड या फिर राइट शिफ्ट में लेना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, सो यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो अभी वॉल्यूम के केस में आते हैं। सो चेंज इन वॉल्यूम के बारे में क्या हम डिस्कस कर सकते हैं? नाउ व्हेनेवर वी चेंज वॉल्यूम by adding some inert gas, we are increasing volume, so it will decrease the concentration throughout. And what will happen when we decrease the concentration? The equilibrium will shift. यहाँ पर और एक रूल आ जाता है, the equilibrium will shift where we have more number of moles. So if delta n is positive, it will go forward or right shift, because यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में मोर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, सो विल हैव लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यहाँ पर अगर डेल्टा एन नेगेटिव हो गया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मोर डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो फिर अपने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट साइड में जाना पड़ेगा। सो अब इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में हम देखते हैं N2 + 3H2। सो बैलेंस हमेशा करते रहना। अगर कोई भी इक्वेशन बैलेंस नहीं दिया है तो मैक्सिमम एग्जाम केसेस में बैलेंस इक्वेशन मिलता है, फिर भी नहीं मिला तो आप बैलेंस कर लेना अपने से। सो इट विल रिलीज 22.4 किलो कैलोरी हीट। So what will happen? Let's discuss. First of all, so हमें क्वेश्चन में दिया गया है this is Haber's process, industrial preparation of ammonia. So we have to increase the production of ammonia by any way or by applying Le-Chatelier principles. So this reaction is exothermic where delta H is negative and we are releasing 22.4 kilocalorie heat per mole. 22.8 kilocalorie per mole. So देखते हैं पहला इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। सो हमारा एम क्या है? एम इज टू गेट मोर अमोनिया, मोर NH3 या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, लाइक हमें ज्यादा NH3 का प्रोडक्शन चाहिए। तो हमें एम क्या रखना चाहिए? फॉरवर्ड शिफ्ट। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट क्या होना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन अपन इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, बिकॉज हमारे पास मोर रिएक्टेंट है और लेस प्रोडक्ट है। टू अंडू द चेंज और टू नलिफाई दिस चेंज इन इक्विलिब्रियम वी हैव टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन का पहला केस फॉरवर्ड लेने के लिए। और एक भी केस अपन ने बताया था, अगर हम प्रोडक्ट को किसी तरह रिमूव कर दें, सो अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम डिक्रीज करवा दें तो फिर भी हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा होल थ्रू आउट, और अपने जो रिएक्टेंट्स है वो फिर से प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल केस। सो होपफुली आपको सारा समझ याद रहा। और अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं यहाँ पर, तो प्रेशर को कैसे चेंज करें जैसे कि अपना फॉरवर्ड डायरेक्शन जाए। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एन क्या आएगा? डेल्टा Ng -2 - 4 बिकॉज वी हैव 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो डेल्टा एन का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। अगर डेल्टा एन नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? सो दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। This reaction will proceed in forward direction if we increase the pressure, because pressure increase करने से concentration increase होगा और concentration हर तरफ increase होगा। यहाँ पर reactant side में less concentration increase होगा, तो अपना जो ज्यादा reactant बना है वो फिर से product side में convert हो जाएगा और अपन को ammonia industrial method में ज्यादा मिलेगा। फिर let me clean everything and let's discuss about temperature and inert gas effect. So अपना aim है forward shift करना, और यहाँ पर आपको पता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बिकॉज हीट रिलीज हो रहा है। और किसी भी एक्सो रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करवाना है। किसी भी एक्सो रिएक्शन के लिए आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करवाना है इन ऑर्डर टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पर गलती से भी टेम्परेचर इंक्रीज मत कर देना। सो सारा मेहनत पानी में जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। सो आपको पता है अगर कोई भी इनर्ट गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन कुछ भी ऐड करता हूं तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होने से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन हर तरफ डिक्रीज होगा कि नहीं? यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट साइड में मोर मोल्स है तो 4 यूनिट डिक्रीज हो जाएगा रिएक्टेंट साइड में, और सिर्फ 2 यूनिट डिक्रीज होगा प्रोडक्ट साइड में। तो विल हैव मोर प्रोडक्ट एंड लेस रिएक्टेंट while decreasing the
while increasing the volume. So more product है, less reactant है, तो to nullify the change or to attain equilibrium again, so we have to proceed backward. So अपना एम क्या था, फॉरवर्ड था, हमें मोर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया चाहिए था, बट जब हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर बैकवर्ड जा रहा है। तो हार्बोर्स प्रोसेस में इनर्ट गैस ऐड नहीं किया जाएगा, बिकॉज हमें एम है ज्यादा अमोनिया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, जो कि हम 3 पैरामीटर चेंज करके पा सकते हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है टेम्परेचर, ये एक्सोथर्मिक है इसलिए आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा सकते हैं फॉरवर्ड के लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को घटा सकते हैं फॉरवर्ड के लिए, और प्रेशर केस में आप डेल्टा एन नेगेटिव है तो इसलिए आप प्रेशर इंक्रीज करके कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करवा के आप क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। और एट लास्ट आपको पता है कि कैटलिस्ट विल हैव नो इफेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड, और भी बहुत सारे मजेदार वीडियो के साथ अपन आते रहेंगे।